And very good morning to all of you. How many students in your class? 47, sir. 47. And here I can see only 14 students are here. And there are 47 in total, right? Okay. Yes, sir. Still Yes, sir. students are joining. Fine, fine. So in your syllabus, some part of statistics, basic statistics like charts, data representation, and charts of different types, mean, median, mode, their calculations, their evaluations, and after that some numerical illustrations part are there as well, and numerical methods. So the syllabus is more or less quite easy. I think for your point of view it's quite easy. The most important thing is that you just revise all the things which you have taught in the class before attending the next class, right? Okay, sir. आप नेक्स्ट क्लास अटेंड Okay, करने से sir. पहले, आप कभी भी नेक्स्ट क्लास अटेंड करें तो उससे पहले आप जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करके ज़रूर आएँ, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का समझ में आए. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके. तो जैसे आज मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ, चाहे मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊँ, कितना भी पढ़ाऊँ, कोई भी टीचर आपको किसी भी क्लास में कुछ पढ़ा रहा है तो नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले उसके प्रीवियस क्लास को अच्छे से आप रिवाइज करके आइए. फाइन. I think you have all got this the notice for offline classes. Have you got it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. I repeat the things. From 16 February onwards, your offline classes will be there, and it is strictly will be in offline mode as per government rules. There is no restrictions now. Corona cases are decreasing very rapidly, or we can say exponentially. These are decreasing. So there is no harm for coming in the campus and taking the offline classes. And offline classes, no doubt, quite comfortable than the online classes. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो Yes, sir. यस यस, तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है मेरा, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जल्द से जल्द 16 फरवरी से पहले कैंपस आएँ, और फ्रॉम 16 फरवरी ऑनवर्ड्स जस्ट अटेंड दी ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस. ओके. अगर ऑफलाइन क्लास में 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट भी आएंगे तो टीचर उनको पढ़ाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और जो नहीं आएगा उसका मिस हो जाएगा. सो प्लीज़ प्लीज़, यू हैव टू कम, यू शुड कम, यू मस्ट कम. इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. One more thing. In my class, you should be punctual. You all should be punctual. After 5 minutes, I will not allow anybody to come the online class or offline class. 5 मिनट के बाद में मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा. दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, डेट्स वाई आई एम अलाउइंग. Otherwise, after that, I will not allow anybody after 5 minutes, whether it is in online mode or in offline mode. You should be punctual. Is it very clear to everyone? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, thank you. So, let's start. I will share the syllabus in the evening itself after joining the Google Classroom. Let's start some basics. So if anybody, before starting, if anybody wants to say something, or if anybody wants to ask something regarding anything, then please ask. You are free to ask anything before starting the class. हेलो सर, माय Yes, नेम शुभम नागर. yes, Shubham. सर मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें सर लेट एडमिशन लिया था मैंने. Okay.
सर उसका मैंने बहुत कम रिवीजन किया है। ओके। उसका कोई इशू आएगा सेकंड सेमेस्टर में? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, अगर आप मेरी क्लास को रिवाइज करते जाओगे जो पढ़ाया जा रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर से कोई ख़ास लिंक नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे, जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप मुझसे जैसे क्यूबिकल में आके आराम से कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। यू ऑल आर ठीक है सर, वेलकम। यस, थैंक थैंक यू यू। सर। यस, you all are welcome for coming in my cubicle for any kind of doubt anytime. ओके सर। बट आपको थोड़ा सा मुझे कॉपरेट करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि आप डेली रिवाइज करें। ऐसा ना हो कि आप रिवाइज ना करें, क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें और फिर प्रॉब्लम आए। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, डोंट वरी। ओके। Okay, so we start with, just allow me for sharing my screen. कॉपी पेन साथ में रखिए। अगर मैं कुछ लिखवाता हूँ तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए। किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं बता दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ऑलवेज कीप अ पेन एंड पेपर विथ योर सेल्फ इफ़ यू आर टेकिंग द मैथमेटिक्स क्लास। ओके, Okay, sir. ऑलवेज। I think the screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. यस सर। Good. yes, sir. Good. So some theory part is there before move to evaluation part. कुछ इसका थ्योरी पार्ट है जो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा अपने आप पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, सो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं। अ, अ, ये एक बार सिलेबस देख लीजिए आप लोग। मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, डोंट वरी, बट थोड़ा सा देख लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट स्मूथली। द पेपर नेम इज़ मैथमेटिक्स 2। The subject code is BSc 202. Okay. In this module, basic statistics is there, in which scope, functions, and limitations of statistics, collection and presentation of data in tabular form and diametric representations, frequency distributions, relative frequency, cumulative frequency, bar graphs, pie charts, histogram and all. Second मॉड्यूल इज़ मोर एंड लेस डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट मॉड्यूल। ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट है, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल्स, क्वाड्राइल्स एंड ऑल। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, रेंज, इंटर क्वाड्राइल, मीन, मीन डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मेजर्स ऑफ शेप एंड रिलेटिव लोकेशंस, स्क्यूनेस एंड कोटोसिस, सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये जो 3 छोटे छोटे मॉड्यूल हैं ये आपके स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हैं। नंबर 1 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ये जो बाकी के लास्ट के 3 हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपका न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड है। Definition of operators and relations among them all, interpolation with equal intervals, Newton's forward difference formula, Newton's backward difference formula, interpolation with unequal intervals, Lagrange's method, Newton's divided difference, then
solution of algebraic and transcendental equations in which bisection method, regular falsy method, Newton-Raphson method, iterative methods and all. तो ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स फाइनाइट डिफरेंसेस है, इंटरपोल्यूशन है और सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस है, ये आपका न्यूमेरिकल मेथड्स पे बेस्ड है, और बाकी ये जो शुरू के तीन है ये आपके स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है. ओके ओके माय वॉइस इज, are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So we start with the basic, just a second. Just a second. Some problems is there. Just a second, just a second. ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ये पेन टैब इसमें काम क्यों नहीं कर रहा. टूल्स, ओके चलो देखते हैं. ये पेन टैब थोड़ा इशू कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें. Just a second. Okay. ये थोड़ा सा जूम इन. Okay. So ठीक है. द स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो सम थ्योरी पार्ट इज देयर, तो पहले उसी को देख लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, बाकी आप अपना पढ़ लेना. स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग. इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. यस. Statistics is the science which deals with the collection, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to through light on any sphere of inquiry evaluate. मतलब ये थोड़ा टिपिकल डेफिनेशन है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको एनालाइज कर रहे हैं. डेटा कलेक्शन कैसे भी हो सकता है, सर्वे के थ्रू भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और उससे कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो वो स्टैटिस्टिक्स में आता है.
ओके। दूसरा पार्ट है इसका बायोस्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में काम आती है या मेडिकल साइंस में काम आती है उसे बायोस्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स is the application of statistics methods applied to biological areas, biological laboratory experiments, medical research, and health services research all use statistical methods. Okay, तो जो statistics हमारे मेडिकल रिसर्च में, लेबोरेटरीज में, इन सब में काम आती है उसे बायोस्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है। देर आर 3 रीजन्स फॉर फोकसिंग ऑन बायोस्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे 3 रीजन्स हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स पे क्यों फोकस किया जाता है आज के समय में। तो वो तीनों रीज़न आप अपने आप पढ़ सकते हैं, इस पर मैं नहीं जाऊँगा, ये आपके बस सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ओके। ये 3 रीजंस हैं। इसके बाद में ये एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स है, इसको भी आप थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट है। अब मैं आता हूँ डेटा पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए डेटा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे डेटा क्या होता है? वैसे इन जनरल अपनी भाषा में आप बताएं क्या होता है डेटा। एनीबॉडी? Set of information. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे डेटा कहा जाता है, लेकिन वो रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा जो होता है वो रॉ मटेरियल की तरह होता है। रॉ डेटा इज जस्ट लाइक रॉ मटेरियल। जैसे राइस होता है, राइस को जब तक आप पकाओगे खाओगे नहीं तो वो जब तक रॉ रहेगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो राइस आपके पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको पकाना भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में ही आप उसे खा सकते हो। जस्ट लाइक डेटा होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। डेटा क्या होगा? डेटा तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई, ये देखिए, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम सेंसेस और सर्वेज और फ्रॉम अदर सोर्सेज इज कॉल्ड रॉ डेटा। मतलब आपके पास किसी भी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसका अगर आप कलेक्शन करते हैं तो उसे डेटा बोलते हैं, लेकिन वो रॉ डेटा है। जब तक उसको एनालाइज करके आप कहीं पे यूज़ नहीं करते हैं, उसको किसी जगह यूज़ करने के लायक कन्वर्ट नहीं करते हैं, सूटेबली उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक राइस की तरह होगा, एक चावल की तरह होगा। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, it has to be converted into more suitable form before it begins to make sense to be utilized gainfully। मतलब जब तक आपके पास, जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक कोई सेंस नहीं है उसका, वो रॉ डेटा की तरह या रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। फाइन। तो डेटा का मतलब होता है आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसे डेटा कहा जाता है। डेटा 2 तरह का होता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटास, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। There are 2 types of data, primary data and secondary data। प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सनल, कोई भी इंडस्ट्री जो डेटा कलेक्ट करती है और सिर्फ वो खुद के लिए यूज़ करती है, उस डेटा को किसी और को वो नहीं देती है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर कोई और भी उसको यूज़ कर रहा है, किसी और के भी हेल्प वो कर रहा है, डेटा यूज़ आ रहा है, उसका एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहा है, कोई और भी यूज़ कर रहा है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो देख सकते हैं आप, व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा? इट इज़ द डेटा कलेक्टेड बाय सम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज ऑन यूज़ फ्रॉम एनी प्राइमरी सोर्सेज। आई रिपीट द डेफिनेशन। It is the data collected by some person or organization for his own use
for his own use from any primary sources. For example, the data of census report collected by the central government, the data collected by any agency for its own purpose, the Gazette of India, etc. तो एक ऐसा डेटा जो कहीं से भी कलेक्ट हो रहा हो, लेकिन उसको जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है, कोई भी पर्सन कलेक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ उसी के काम आए और किसी के काम ना आए. दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये थ्योरी पार्ट है, Yes, इसको sir. फटाफट देख लेते हैं हम, कोई मतलब खास बात नहीं है. सेकेंडरी डेटा, it is data collected by some other person or organization for their own use, but the investigator also gets it for his own use. For example, the data collected by any medical agency can be used by some other medical institutions students as well. तो जैसा मैंने आपको बताया, सेकेंडरी डेटा क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन उसको कलेक्ट कर रहा है, लेकिन कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी अगर उसको यूज़ कर रही है तो उसे सेकेंडरी डेटा बोला जाता है. और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखिए. द डेटा कलेक्टेड बाय एनी मेडिकल एजेंसी कैन बी यूज्ड बाय सम अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स. ओके. So in other words, primary data are those data which are collected by you to meet your own specific purpose, whereas the secondary data are those data which are collected by somebody else. A data can be primary for one purpose as secondary for the other purpose. तो ओवरऑल मतलब ये निकल के आ रहा है कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो खुद के काम में आता है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको कलेक्ट कर रही है वो उसके खुद के काम में आए, किसी और को वो फॉरवर्ड ना करे, किसी और को यूज़ ना करने दे. सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कलेक्ट कर रही है वो उसके खुद के भी काम में है और किसी और को भी फॉरवर्ड करके वो दूसरे को भी हेल्प करे, दूसरे को भी काम में लेने दे. सो दीज टू टाइप्स ऑफ डेटा. Any doubt in the definition of data and types of data? No, sir. Okay, simple. Now, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, मतलब आपने डेटा अरेंज किया या डेटा को कलेक्ट किया. अब डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए. ठीक है. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है. डेटा को प्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं. देर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ डेटा. नंबर वन, इन टेबुलर फॉर्म. नंबर टू, इन ग्राफ्स फॉर्म. मेरा भी पेन टेप काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको लिखवा देता यहाँ पे. खैर इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कुछ. तो किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, टेबुलर फॉर्म और ग्राफ्स फॉर्म. टेबुलर फॉर्म क्या होता है? टेबल बनाना. आपको सबको आता है, आप आराम से बना सकते हैं. आपको बोला जाए कि आपकी क्लास में टोटल 47 स्टूडेंट्स हैं. आपको बोला जाए कि आप एक टेबल बनाइए जिसमें दो क्राइटेरिया रखिए, एक नेम ऑफ द स्टूडेंट और एक एज ऑफ द स्टूडेंट. तो आप आराम से टेबल में बना लोगे ना. Yes, sir. सिंपल. नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एज ऑफ द स्टूडेंट. आपसे बोला जाए कि आप एक ऐसी टेबल बनाइए कि नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट, वो भी आप आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपसे बोला जाए कि आप दो अलग अलग टेबल बनाइए, एक बॉयज़ के डेटा की टेबल बनाइए, एक गर्ल्स के डेटा की टेबल बनाइए. और बॉयज़ के डेटा और गर्ल्स के डेटा की टेबल में आपको क्राइटेरिया क्या रखना है? नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट. तो आप आराम से अलग अलग बना सकते हो. तो आपने आपकी क्लास का जो डेटा है, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा जो है, वो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया. आराम से पता चल गया कि इस स्टूडेंट का नाम यह है, इसकी हाइट ये है. इस स्टूडेंट का नाम यह है, इसकी हाइट ये है. आपको आराम से पता चल रहा है उस टेबल के माध्यम से. तो वो डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है टेबुलर फॉर्मेट. टेबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हम टेबल फॉर्म में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक इजी मेथड है, वो बहुत छोटी सी बात है. ठीक है, हम डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो सेकंड मेथड है, कौन सा, ग्राफ्स के थ्रू, उन पे हम फोकस करेंगे. डेटा को आप ग्राफ्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? टेबल, ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट है हमारे पास. उसके बाद में तो होता क्या है, कई बार बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा होता है और कई बार इतनी बड़ी क्वांटिटी में डेटा होता है कि हमें उसमें फ्रीक्वेंसी को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. अब अगर मान लीजिए 200 लोगों का डेटा है, 400 लोगों का डेटा है और उसमें क्राइटेरिया सिर्फ 2 नहीं है, क्राइटेरिया 5 है, मान लो 6 क्राइटेरिया है, 7 क्राइटेरिया है. नेम ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट, वेट ऑफ द स्टूडेंट, राइट. तो बहुत सारे अगर क्राइटेरिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो टेबल फॉर्मेट में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. उस टाइम आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से स्टूडेंट की हाइट कौन सी है, कौन से स्टूडेंट की किस स्टूडेंट का वेट कितना है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू जज. तो कभी भी क्वांटिटेटिव डेटा होता है और आपके पास में क्राइटेरियाज, कैटेगरीज एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में हमें ग्राफ काम में लेना पड़ता है. ग्राफ के थ्रू हमें उस डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, टेबल के थ्रू हम नहीं कर सकते. तो ये टेबल फॉर्मेट का ड्रॉबैक है. देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, tabulated data will give some information and also allow for further analysis. The columns and rows in a table make eye strain. ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, eye strain, आँखों में आपके दर्द पैदा करेगा. The columns and rows in a table makes eye strain and there are chances of poor visual impression of data presented in a tabular form. Okay. Now the well tabulated data can be represented in the form of picture, diagram or figure which will help in a good comparison through good visual impression. तो मैं यही बात बोल रहा था आपको कि टेबल में क्या होता है, आंखों में आपके दर्द होने लग जाएगा, विजुअल इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा अगर बहुत बड़ा डेटा हुआ तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. उससे विजुअल इंप्रेशन भी अच्छा होगा, आपकी आंखों में दर्द भी नहीं होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी. एरर होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, इनफैक्ट एरर होगा ही नहीं. The representation of quantitative data through charts and diagrams is known as graphical representation of statistical data. किसी भी statistical data का graphical representation. क्यों? Because a picture is said to be more effective than words for describing a particular thing or phenomena. ये बात तो आप जानते हैं, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं इस लाइन से? A picture is said to be more effective than words for describing a particular thing or phenomena. Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी भी चीज़ को आप एक तो लिखते हैं, मतलब पढ़ते हैं, और उसी चीज़ को अगर आप वीडियो के थ्रू देखते हैं, ग्राफ के थ्रू देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है या नहीं आता है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. यही बात है. इसीलिए हम फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. मूवीज़ हमें याद भी रहती है, इसीलिए इंस्पायर होते हैं क्योंकि वो वीडियो है. वीडियो के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ज़्यादा हमारे लिए ठीक होती है, इफ़ेक्टिव होती है. ओके. तो हम ग्राफ के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. आपके सिलेबस में ये ग्राफ्स हैं, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व. बस ये 4 हैं, 1 2 3 4. ये पिक्टोग्राम्स, लाइन चार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड स्कैटर डायग्राम ये आपके सिलेबस में नहीं है. ओके. सो बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व. चलिए, डेटा को हम इन ग्राफ्स के थ्रू, अलग अलग ग्राफ्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ओके. Okay, sir. Yes, sir. ओके.
First of all, bar diagram. बार डायग्राम में क्या होता है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि एक्स एक्सिस जो होती है, उस एक्स एक्सिस पे तो आपको कैटेगरी, जो भी क्वेश्चन में कैटेगरी होती है वो लिखनी होती है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हैं आप लोग? कितनी बार कोई चीज अकर कर रही है। करेक्ट, करेक्ट। कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। तो बार डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे आप कैटेगरी लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा अभी आपको। वाई एक्सिस पे आप हमेशा फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, बार बनाएंगे। बार का मतलब होता है जैसे एक आपकी किटकैट चॉकलेट होती है ना, उस किटकैट चॉकलेट में देखते हो आप बार होता है एक, ठीक है, लंबा सा। ओके, वैसे आप बार्स बनाओगे, बिल्डिंग्स बनाओगे। लेकिन उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे बार डायग्राम बनाने से पहले। देखिए वो रूल्स क्या क्या हैं। नंबर 1, द विड्थ ऑफ ऑल द बार्स और कॉलम्स इज सिमिलर। जो बार्स जितनी भी आप यूज़ कर रहे हैं उन सब की विड्थ्स, या जो कॉलम्स आप बना रहे हैं उनकी विड्थ्स सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, कोई भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आपको। ऑल द बार्स शुड आर प्लेस्ड ऑन इक्वल इंटरवल्स और डिस्टेंस। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स आर पॉसिबल। बार डायग्राम 3 टाइप के होते हैं, सिंपल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और मल्टीपल बार ग्राफ। किसी भी डेटा को बार डायग्राम के थ्रू अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और मल्टीपल बार ग्राफ। वो डेटा की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि डेटा में कितनी कैटेगरीज बनी हुई हैं। Guys, just a second. Somebody's calling me. I think it's important. Just a second. हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल छाबड़ा सर से बात कर रही हूँ। यस, स्पीकिंग। सर, आई एम डॉक्टर इरफान आंगिया फ्रॉम केआर मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव। ओके। यस। यस। यस मैम। बोथ। if per paper मैम, पर पेपर। Yes, you just send your paper by using easy chair link. We will review it, and we will send the acceptance or rejection. After that you just submit the fees and fill the registration form. Yes, if it is accepted, then you just pay the fee and fill the registration form accordingly. Otherwise, yes, 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 yes. If it is accepted, then it will definitely publish. Okay, thank you. Yes, guys, sorry for perturbation. Can you hear me all?
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So यस, तो मैं आपको बता रहा था कि बार डायग्राम में दो कंडीशंस हैं. एक तो बार्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप जो बार बनाएंगे मैं बताऊंगा आपको, उनकी सबकी चौड़ाई या विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए. दूसरा, जितनी भी बार्स हैं उन सब के बीच में जो गैप होता है, जो इंटरवल होता है, वो कॉमन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. बार डायग्राम की बात कर रहे हैं. और क्वेश्चन में कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के बार डायग्राम बनेंगे. सिंपल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ. ओके, तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे इसको. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल बार डायग्राम के लिए है. इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं. देखिए, in base hospital has been found patients in OPD in particular disease as below in year 2012. 2012 जो ईयर है उसमें एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ओपीडी में जो पेशेंट्स आए हैं उन पेशेंट्स का डेटा यहाँ लिखा हुआ है. ये थोड़ा डेटा जो है ये पीपीटी में कन्वर्ट करने के कारण थोड़ा सा मिसमैच हो गया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल है समझाना. ये डेटा कुछ ऐसे है कि जनवरी में ये देखना पड़ेगा, मिसमैच हो रहा है यहाँ पे. यस यस, ये देखिए यहाँ पे. तो कोई एक हॉस्पिटल है, उसमें ओपीडी में 2012 जो ईयर था उसमें मंथली कितने कितने पेशेंट्स आए ओपीडी में वो दिखाया गया है. जनवरी में यहाँ मंथ है, देखिए ये मंथ लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम मंथ का है और सेकंड यहाँ पेशेंट्स का है. ये मेरा, मैं आपको ऐसे बताता हूँ. जनवरी में 285 पेशेंट्स आए हैं, फरवरी में 315 पेशेंट्स आए हैं, मार्च में 250 पेशेंट्स आए हैं, अप्रैल में 289 आए हैं, मई में 386, जून में 410, जुलाई में 452, अगस्त में 620, ऐसे ही पेशेंट्स आए. अब आपको बोला जाए कि आप इसका एक बार डायग्राम बनाइए सिंपल, तो आप बार डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, इसको कैसे आप करेंगे देखिए. ये देखिए, आप एक्स एक्सिस पे लिखेंगे मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ 2012. और वाई एक्सिस है, इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स लिखेंगे आप. ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ. आप कुछ ऐसा बनाएंगे, ये ये ब्लैंक स्लाइड आपको दिख रही है? Yes, sir. ठीक है, तो आप इसमें, अरे यार ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें. इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन आ जाओ जल्दी से जल्दी.
तो आप क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये वाई एक्सिस बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप सिंपली मंथ्स इन 2012, ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ लिखेंगे आप नंबर ऑफ पेशेंट्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे इक्वल इंटरवल में, क्योंकि जनवरी फरवरी सब इक्वल इंटरवल में बनेंगे, तो यहाँ पे जनवरी, यहाँ फरवरी, यहाँ मार्च, यहाँ अप्रैल, यहाँ मई, यहाँ जून, जुलाई, इस तरह से इक्वल इंटरवल में आप मेंशन करेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं ओरिजिन और जनवरी के बीच में, तो जनवरी फरवरी के बीच में भी आप 2 सेंटीमीटर का ही गैप लेंगे, फरवरी और मार्च के बीच में भी आप 2 सेंटीमीटर का ही गैप लेंगे, क्योंकि बार डायग्राम के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि आप जो भी डेटा ले रहे हैं यहाँ पे उनके बीच में इक्वल इंटरवल होना चाहिए, और आप जो बार्स बना रहे हैं वो सेम विड्थ की होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर दीजिए, जैसे 0 है, आप यहाँ पे 100 एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, इस तरह से इक्वल इंटरवल पे आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी में कितने पेशेंट थे हमारे पास, जनवरी में पेशेंट थे हमारे पास 285, तो ये जनवरी में 100 और यहाँ पे 200, या देख लेना 200 भी लिखना है यहाँ मेंशन, ये रहा देखो, ये इधर आ गया गलती से, ये एक्चुअली मिसमैच हो रहा है, मैंने कहा ना टेबल ऐसी बनी है, 0 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे बनाना है। जनवरी में 285 है, तो जनवरी में ये 285 यहाँ पे, तो ऐसा एक बार बनाना है आपको, ऐसा एक बार बनाना है, ये 285 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 से जनवरी के बीच बनाना है आपको, ऐसे बनाना है, मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये 0 है, ये जनवरी है, ये फरवरी है फॉर एग्जांपल, और ये मार्च, मैं 3 का बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है फॉर एग्जांपल। तो जनवरी में 285 है, तो 285 तकरीबन यहाँ पे है, तो आपको 0 से लेके जनवरी तक पूरा ये मिला के एक बार बनाना है। एक सेकेंड, ये आपको सॉरी जनवरी में एक बार बनाना है, ये 285 यहाँ पे एक ऐसे बार बना देना है, ये थोड़ा सीधा ऐसे। फिर आप फरवरी पे आएंगे, फरवरी में है हमारा, फरवरी में कितना है 315, तो ऐसे फरवरी में 315, ये 300 है और ये मान लीजिए ये 400 है, तो 315 यहाँ पे करीब है तकरीबन, ये यहाँ पे ऐसे करके एक ऐसा बार बनाना है। एक बात ध्यान रखना, बार की जो चौड़ाई है ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए जितनी भी बार्स आप बना रहे हैं, और दूसरी बात ये जो डेटा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इनके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि जनवरी फरवरी के बीच में 2 सेंटीमीटर ले लिया, फरवरी मार्च के बीच में 3 सेंटीमीटर ले लिया, ऐसे नहीं, आप कुछ भी लें इक्वल लें। और इन जो बार आप बना रहे हैं वो कितना भी पतला कितना भी मोटा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी सबकी विड्थ जो है सेम होनी चाहिए। ये देखिए 2 कंडीशन यहाँ लिखी हुई है क्लियरली, द विड्थ ऑफ ऑल द बार्स और कॉलम्स इज सिमिलर एंड ऑल द बार्स शुड आर प्लेस्ड ऑन इक्वल इंटरवल्स और डिस्टेंस। ओके, तो ये एक सिंपल डेटा था कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ओपीडी में कितने कितने पेशेंट्स आए,
उस डेटा को हमने सिंपल बार डायग्राम के थ्रू ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। थोड़ा सा ये No, sir. पीपीटी में टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इसके कारण तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, so this is it for today. Please revise all the things. I will share this PPT in Google Classroom. जितना भी आज क्लास में पढ़ाया है आप पढ़ के आइए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आए कि क्या चल रहा है। मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पढ़ के रिवाइज करके आओगे तो, ठीक है। और ग्रेजुअली हम इसको पॉप अप कर लेंगे, जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है तो और भी ईजी हो जाएगा। फ़िलहाल कोई डाउट है तो बताइए आज की क्लास में। No, sir, no doubt. सर वो गूगल क्लासरूम का लिंक नहीं है। नहीं, वो मैं शेयर करूँगा अभी, इन द इवनिंग आई विल शेयर। ओके सर। ओके सर। Okay, then thank you so much guys. Have a good day. सर Yes. सर अटेंडेंस। अटेंडेंस अभी आप ये चैट बॉक्स में अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दो, क्योंकि अभी तक वो IMCRP पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, देख लेंगे बाद में। You just ठीक है put सर। your enrollment number in the chat box immediately. Okay, done everybody? यस सर। Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much.